Hello everyone, my name is Shalaka Sharma. I'm a company secretary and today we will be learning about the chapter Share Capital and Debentures. This is chapter number 4 of CA Enter. This chapter is divided into sections starting from section 43 to section number 71, of which section 43 to section 70 talk about shares and section number 71 talks about debentures. सेक्शन 43 से लेकर सेक्शन नंबर 70 तक के चैप्टर्स का एक पार्ट रहेगा। इसके अंदर और सब पार्ट्स होंगे, जैसे कुछ सेक्शंस which will be primarily talking about types of issue, कुछ sections which will be talking about transfer and transmission of shares, some sections that will be talking about registration by the company of this transfer and transmission, certain sections will talk about alteration of share capital. ऐसे अलग अलग parts है इन sections में, but section number 43 to section number 70 will talk about share capital only, not about debt capital. So let us start with trying to understand what is capital, what is the difference between share capital and what is debt capital. Share capital और debt capital में basically difference क्या है? Let us see. यहाँ आप एक रफ नोट में देख सकते हैं कैपिटल क्या है, शेयर कौन से तरह में डिवाइडेड है. कैपिटल इज द मनी, पैसा है जो कंपनी को अपने फंक्शनिंग के लिए, कंपनी को अपने एक्टिविटीज के लिए, कंपनी को अपने रनिंग के लिए लगने वाला है. हर कंपनी को काम करने के लिए सबसे पहले कैपिटल की ज़रूरत होती है और वो कैपिटल सारा का सारा वो खुद अरेंज नहीं कर पाती है. सबसे पहली बात तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी which means it cannot arrange money on its own and it has to depend on other natural individuals, on other natural persons for arrangement of the capital. अब इस अरेंजमेंट के दो तरीके होते हैं. One is owned capital and the other is the borrowed capital. Owned capital मतलब क्या? Owned capital is that capital which is arranged by the members of the company. कंपनी के मेंबर्स जो पैसा कंपनी के लिए अरेंज करते हैं, that is called as the owned capital. And the other is debt capital. This debt capital is borrowed from outsiders. Outsiders means those who are not the members of the company. वो लोग जो कंपनी के मेंबर्स नहीं है, वो लोग कंपनी को लेंड करते हैं, लोन के तौर पे देते हैं और कंपनी अपने टेम्पररी वर्किंग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जब ये लोन अमाउंट देती है तो कंपनी डेट रेज करती है, ना कि ओन्ड कैपिटल, ना कि इक्विटी कैपिटल रेज करती है. Who all persons, when they contribute equity capital, they become the members of the company or they become the owners of the company. And all those persons lending money, who are lending money, मतलब कंपनी जिनसे बोरो कर रही है, they become the share debenture holders of the company. Now how can a person transact with the company in the capacity of member, in the capacity of shareholder and in the capacity of debenture holder? Let us understand this with the example of Solomon versus Solomon and company. We know this case. This is the first case law that every student learns while learning company law. This is Solomon versus Solomon and company, जो हम लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी प्रिंसिपल अंडरस्टैंड, सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल समझते वक्त ये केस लॉ हमने स्टडी किया था. व्हाट इज दिस केस लॉ? देयर इज अ पर्सन सोलोमन. सोलोमन एक लिमिटेड कंपनी बनाता है, वो लेदर बिजनेस करता है, ही इज अ लेदर मर्चेंट, ही इज अ बूट मैन्युफैक्चरर एंड ही फॉर्म्स अ लिमिटेड कंपनी. ही फॉर्म्स अ लिमिटेड कंपनी विद 7 मेंबर्स. कौन होते हैं 7 मेंबर्स? सोलोमन हिमसेल्फ, his wife, his 4 sons and his 1 daughter. And what he does, वो अपना sole proprietary का business इस कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम पे बेच देता है. कंपनी जब ये सोल प्रोप्राइटरी का बिजनेस परचेज करती है तो उसके लिए कुछ परचेज कंसिडरेशन देती है. कंपनी ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट देती है 38,782 पाउंड्स.
अब ये जो 38,782 पाउंड्स है, ये 3 तरह से सोलोमन को पे किया जाता है। सबसे पहला, इसमें से 20,000 का कंपनी सोलोमन को फुल्ली पेड शेयर देती है। फुल्ली पेड शेयर मिलते ही सोलोमन 20,000 पाउंड का क्या हो जाता है, शेयर होल्डर हो जाता है। देन कंपनी सोलोमन को 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर्स देती है and the remaining 8,782 pounds is paid in cash. Now, Solomon is simultaneously the debenture holder as well as the shareholder. So, Solomon has two capacities, that of a secured creditor as well as a member, which means company ने बिजनेस एक्वायर करते टाइम सोलोमन को उसके बदले क्या दिया, 20,000 का पाउंड का शेयर्स दिया। अब ये शेयर क्या डिपिक्ट करता है कि सोलोमन का उस कंपनी में 20,000 के प्रोपोर्शन जितना ओनरशिप है, ओनरशिप मिल गया सोलोमन को, उतने अमाउंट का मेंबरशिप मिल गया, प्लस सोलोमन के पास 10,000 का डिबेंचर्स होने की वजह से सोलोमन उस कंपनी का क्या हो गया, लेंडर। In future, Solomon can claim this amount from the company, which we can see is in the liability side of the balance sheet of that company. मतलब ये कंपनी की liability है, which means this is an asset for Solomon. यहाँ इस एग्जाम्पल से we can understand that Solomon, a single person, can have two contractual capacities with a company, that is of a secured creditor when he holds debentures in his name for the company, as well as a member when the company has given him shares against that purchase, against that acquisition. So one person can very well transact with the company in two different capacities, that is the one capacities of the owner of that company as well as the creditor of that company. So this shows how a company raises equity, how company has debt in its liability side. Now all those who contribute its equity, they become the members of the company, and all those who contribute or lend money, they become the creditors of this company. So let us see, like I told you, that there are two bifurcations if we talk according to the sections. Section number 43 to section number 70, which are going to deal with share aspect of the capital, and section number 71 is going to deal with debentures. So now let us take a stop, take a pause from the debt aspect and focus only and only on owned capital or share capital that the company will raise. So let us start with what is capital, what is share capital. There are two types of share capital. Even in this chart there is given. शेयर कैपिटल दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स मतलब क्या, अब इक्विटी एग्जैक्टली क्या कहा गया है, सेक्शंस डिफाइन करते हैं। इक्विटी कैपिटल विच इज नॉट अ प्रेफरेंस कैपिटल। इक्विटी कैपिटल वो हर प्रकार का कैपिटल है जो प्रेफरेंस नहीं है, इसलिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा प्रेफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। Preference means priority, and this priority is regarding two things, that is payment of dividend। जब भी कंपनी कोई भी शेयर्स के अगेंस्ट डिविडेंड इश्यू करेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, डिविडेंड पे करेगा, सबसे पहला वो किसे पेमेंट करेगा, सबसे प्रायोरिटी वो किसे देगा, ही विल गिव दैट प्रायोरिटी टू द होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। The name itself says those who get preference, they are the preference shareholders. And the second is regarding capital repayment. Company capital repayment कब करेगा, at the time of winding up. Let us see how are preference shares defined. The act defines preference share capital as instruments which have preferential right to dividend and preferential repayment during winding up of the company। जब कंपनी वाइंड अप होगा और अपना कैपिटल
अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेगा, तब सबसे पहला नंबर इस रिटर्न रिसीट में पहला नंबर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आएगा, उसके बाद इक्विटी कैपिटल होल्डर्स का आएगा. That is why equity capital is every capital that is not a preference capital, which means that capital or the holders of that capital who do not get any preference regarding payment of dividend, payment of capital, repayment of the principal amount of capital. Okay. Now let us see. इक्विटी कैपिटल में भी कुछ प्रकार होते हैं. इक्विटी कैपिटल में कौन से प्रकार होते हैं? दो प्रकार के इक्विटी कैपिटल है, विथ वोटिंग राइट्स एंड विदाउट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. नाउ आई एम एज्यूमिंग, एंड इफ नॉट आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप साइड में मॉड्यूल अपना ओपन रखें ताकि आपको लिंक लगे कि हम किस प्रकार से प्रोसीड करने वाले हैं. ये इक्विटी कैपिटल का पार्ट जैसे ही आपका मॉड्यूल बताता है, what I have done is, after the bifurcation of equity capital, I am going to start with these sections in the first phase, in a first phased manner. Section number 43, 52, 53, 54, 55, 62 and 63. जब आपकी बुक में शेयर कैपिटल के टाइप्स एक्सप्लेन किए गए हैं, उसी टाइप्स के साथ उन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी वो इश्यू क्यों करती है, कंपनी वो इश्यू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस कंप्लाई करती है, ये सब बताया है. सो दिस इज वन टाइप कि कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू करता है या कौन से टाइप के इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी इश्यू करता है. सो अलोंग विथ दिस वन टाइप वी विल सी, एक साथ ही वी विल सी all the types by which company issues shares. So let us see. In these section number 43, 52, 53, 54, 55, 62 and section number 63, these sections talk about different types of issues that a company can make. So let us start with the first type of issue, section number 43. Shares with differential voting rights. Okay, so like I said, I'm assuming आपका मॉड्यूल है साइड बाय साइड. मैं थोड़ा आपके मॉड्यूल से भी रीड आउट कर रही हूँ, and this PPT can be used as notes, as a handy material. Okay, so according to section 43, share capital of a company limited by shares shall be of two kinds, namely equity share with voting rights or with differential rights as to dividend, voting or otherwise. And the second is preference share capital. हमने ऊपर देखा preference share capital क्या होता है, preference और equity share capital क्या होता है. सिंपल है, इक्विटी वो होता है जो प्रेफरेंस नहीं होता है, और प्रेफरेंस वो होता है जिसके होल्डर्स को डिविडेंड एंड कैपिटल रीपेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस मिलता है. तो इन्होंने क्या कहा है, इक्विटी में भी दो हिस्से हैं. इक्विटी में कौन से दो हिस्से हैं? इक्विटी के दो हिस्से हैं वोटिंग राइट्स, और दूसरा हिस्सा है इक्विटी में डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब क्या? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मतलब ऐसे कुछ शेयर्स जिनमें होल्डर्स को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के मुकाबले अलग राइट्स दिए जाते हैं, अलग राइट्स उन्हें अपने शेयर्स के साथ अलॉट किए जाते हैं. नाउ दीज शेयर होल्डर्स are those shareholders who might have some different interest in the company, for which they are not asking for the ordinary rights as are granted to all the shareholders of the company, but are asking for some different rights against the shares that they are holding in the company. Okay, now let us see. I have an example here. Let us try to understand what exactly is a DVR share. Now, what happens when a company issues a DVR share? There's a company, Tata Motors.
This statistics I have taken from Google. Not exactly these numbers, these are hypothetical numbers. So Tata Motors Company, Tata Motors Limited, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने ए को डीवीआर शेयर अलॉट किया. डीवीआर शेयर्स जब अलॉट किए तब उसके पीछे उन्होंने किस प्रकार का राइट अलॉट किया एज पर द एग्जांपल 10 शेयर्स लेने पर एक वोट. जनरली वी नो 1 शेयर 1 वोट कैन बी द ऑर्डिनरी रेशियो. इन्होंने क्या दिया है 10 शेयर्स के पीछे एक वोट. But dividend कैसा है 5% higher than ordinary shares. Okay. Now there are two types of shareholders. जैसे हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के कैपिटल है, शेयर होल्डर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. लेट्स से ए को उस कंपनी में वोटिंग पावर ज्यादा चाहिए, so he gets for himself allotted the shares wherein he has different voting rights. If not, he can go for less voting rights but different or higher amount of dividend than those of the ordinary shares. That is the reason why company issues DVR, because shareholders उस प्रकार का right उस company में exercise कर सकते हैं. Let us see again what are shares with differential voting rights. Shares with differential voting rights are those shares जो ordinary shareholders के मुकाबले अलग voting rights अपने shareholders को grant करते हैं, जिस वजह से उन shareholders का उस company में interest define होता है. Either they may have a higher voting power in the interest, or if not, against that they may have a higher interest in the dividend received against the shares that they are holding. Okay, so आगे देखते हैं what are the conditions for issue of equity shares. Every time a company issues any type of share, or every time the company issues any type of capital or raises capital, company has to comply with certain conditions. कंपनी को कुछ कंडीशंस कंप्लाई करने पड़ेंगे, और ये कंप्लायंस कौन करेगा? ये कंप्लायंस कल जाके आप लोग ही करोगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज will be those who will be responsible for these compliances. And as a compliance professional, we need to know, we need to understand what all compliances are required to be done when we issue shares with differential voting rights. Before we study the compliances, let us have a quick recap. ये recap बीच बीच में आता रहेगा so that पीछे का भूले नहीं और हमारा लिंक कंटिन्यू रहे. हमने स्टार्ट किया है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के चैप्टर से, जिसमें से डिबेंचर्स का पार्ट आई एम नॉट रिपीटिंग इन दिस रिकैप because we are wholly focusing right now on the shares part. Company needs money to run its activities, company needs money to conduct its activities. That is the reason company raises money from its members, from the subscribers, from the public, and this money company raises in various ways. This capital that the company raises is raised in different types, of which there are basically two types of capital. The first part is equity and the other one is preference. What is equity? Equity is something that is not preference. And what is preference? Preference वो shares जिनके holders को dividend payment, capital repayment के time पर preference मिलता है. Now, equity and preference are basic two types of capital, but इसको भी रेज करने का अलग तरीका होता है. कंपनी ने आज नोटिस दे दिया या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि हमें इतने इतने करोड़ रुपयों की जरूरत है या इतने लैक्स की जरूरत है. दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड कि अगर हमें इतना इक्विटी शेयर कैपिटल बोरो करना है तो हमें ये इक्विटी शेयर कैपिटल किस तरह से बोरो करना पड़ेगा. इसलिए
हमने देखा था कि देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ शेयर्स, हमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स से इशू करना है, हमें प्रीमियम पे इशू करना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना है। तो अलग अलग तरह के इश्यूज होते हैं, अलग अलग तरह के शेयर कैपिटल रेज करने के तरीके होते हैं, of which we have started with shares with differential voting right। एक और बार उसके पीछे का लॉजिक बता दूं आप लोगों को कि कंपनी ये क्यों रेस करती है या कंपनी ऐसे शेयर्स क्यों देती है। There might be some shareholders who might be interested in the voting power of the company, which will benefit the company for better decision making, for better management rights. And there may be shareholders who are interested in the dividend and investment earning of the company. That is the reason they will invest capital into the company. So these holders, they enter into an agreement with the company that either they may have more or they may have different voting power from those of the ordinary shareholders, or they may get different dividend rights, interest in the dividend, which may be different, which may be varied from the ordinary shareholders। हम लोगों ने यहाँ तक देखा। अब हमें देखना है सेक्शन के हिसाब से कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि हमें क्या क्या कंप्लायंसेस करना जरूरी है। और जैसा मैंने आपको कहा, आई एम स्टिल अज्यूमिंग कि आप लोगों का मॉड्यूल आपके साइड में ओपन है। Okay, let us start. No company limited by shares shall issue equity shares with differential rights as to dividend voting or otherwise unless it complies with the following conditions। जब तक कंपनीज एक्ट में दिए हुए कंडीशंस कंप्लाई नहीं होंगे तब तक शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू नहीं किए जाएंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी के हर प्रकार के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में एक प्रकार का नियम लागू करते हैं। नियम लागू करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कंपनी के लिए अगर किसी प्रकार के नियम नहीं होंगे तो क्या लीगल और क्या इलीगल इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट इज द रीजन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स certain rules and regulations, and if a company wants to issue shares with differential voting rights, it is necessary that such authority or such a rule or such an allowance is there in the articles of association। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बताया जाना चाहिए या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने अलाउ करना चाहिए कि कंपनी डीवीआर इशू कर सकता है। सेकेंड, that the issue should be authorized by passing ordinary resolution in general meeting। जनरल मीटिंग किसका मीटिंग होता है? जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है। जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स कंसेंट दे देते हैं तो भी डीवीआर इशू करना पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है एओए में अथॉरिटी है क्या। अगर एओए में अथॉरिटी है तो आगे बढ़ो, नहीं है तो आइदर डिसाइड डीवीआर इशू करना है, अगर करना ही है तो एओए ऑल्टर करना पड़ेगा। वंस यू हैव अथॉरिटी इन एओए, देन द नेक्स्ट स्टेप इज obtaining an ordinary resolution in general meeting। Now, why do we need resolution from the shareholders? We need resolution from the shareholders because when new shareholders or when new members are going to get different rights from those of the existing holders, there may be certain holders जिन्हें लगे अरे नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तो जैसे कभी किसी भी प्रकार के किसी भी पर्सन के कुछ राइट्स होंगे एंड उसके साथ ही कोई इक्वल पर्सन के कुछ और राइट्स होंगे, तो इट इज नेसेसरी कि उस पर्सन का कंसेंट लिया जाना जरूरी है। लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी गिव्स 10 रुपीस का डिविडेंड and there is a shareholder B with whom the company has agreed for 12 rupees ka dividend। In such a case, the
existing shareholders who were receiving 10 rupees, they should be asked for their consent, and in such a case an ordinary resolution in the shareholders meeting shall be sufficient. Now next, यहाँ तक हमने देखा सबसे पहले क्या होना चाहिए, एओए में अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद में एओए, उसके बाद में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है तो भी काफी है, सफिशिएंट है, बट जनरल मीटिंग में मेंबर्स का रेजोल्यूशन आना भी जरूरी है. Provided that where the equity shares of a company are listed on a recognized stock exchange, issue of such shares shall be approved by shareholders through postal ballot. जहाँ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, मतलब जहाँ लिस्टेड कंपनी है, इक्विटी लिस्टेड कंपनी, ठीक है, इक्विटी लिस्टेड कंपनी है, वहां पर जो शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन है वो पोस्टल बैलेट से लिया जाना चाहिए. The word used is shall, which is a compulsory provision. It is compulsorily to be taken by way of postal ballot only. Next, the shares with differential rights shall not exceed 26% of the total post-issued paid-up equity share capital, including equity shares with differential rights issued at any point of time. मतलब कंपनी का कितना भी इशू हो, कंपनी जब डीवीआर इशू कर रहा है तो उसका जो टोटल पोस्ट इशू इक्विटी पेड अप कैपिटल है, उस टोटल पोस्ट इशूड इक्विटी पेड अप कैपिटल का कंपनी 26% ही मैक्सिमम डीवीआर से रेज कर सकता है. ओके, सो देयर इज एन एग्जांपल हियर, there's a company A Limited and A Limited का existing paid up capital है 2 लाख. कंपनी ने न्यू इशू किया है 1 लाख रुपीस का. ये कंपनी ने 1 लाख रुपीस डीवीआर से इशू किए हैं. तो कंपनी ने डीवीआर से इशू किए हैं तो कंपनी का टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल हो जाता है 3 लाख. नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड सी कि कंपनी 26% से ज्यादा डीवीआर इशू कर रहा है या 26% से कम इशू कर रहा है. The total post issue paid up capital is 3 lakh, so we have divided 1 lakh by 3 lakh. 3 लाख का जो डीवीआर, 3 लाख का जो टोटल पोस्ट इशूड पेड अप कैपिटल है, इसमें से डीवीआर कितना है, डीवीआर इज 1 लाख रुपीस. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख कितना परसेंटेज आ रहा है, 33.33%. Clearly, this is exceeding 26%, which means कंपनी को 1 लाख रुपीस से डीवीआर इंक्रीज करना अलाउड नहीं है. अब कंपनी को डीवीआर कितना इंक्रीज करना अलाउड है, ये 33.33 का 26%, मतलब ये 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ही डीवीआर लेना अलाउड रहेगा. नेक्स्ट कंडीशन, company having consistent track record of distributable profit for the last 3 years. अगर मुझे current year that is 2020 and 2021 में मुझे DVR issue करना है तो मुझे last 3 years देखने पड़ेंगे. last 3 years 2019 2020, 2018 2019 and 2017 2018, ये जो 3 years है, इन 3 years में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स मेरी कंपनी ने अर्न करने चाहिए. डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो हम प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम डिविडेंड कहते हैं. मतलब पिछले 3 साल में मेरी कंपनी के पास ऐसे प्रॉफिट्स होने चाहिए जो डिविडेंड देने लायक हो. दीज आर ऑल कंपल्सरी प्रोविजंस and only upon fulfillment of these conditions can a company issue shares with differential voting rights. पहले से देखते हैं, एओए में अथॉरिटी होनी चाहिए. अगर एओए में अथॉरिटी है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना है मेंबर्स से. जो पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल है उसका मैक्सिमम 26% ही कंपनी डीवीआर से रेज कर सकती है. 26% से ज्यादा का अमाउंट पोस्ट इशूड इक्विटी पेड अप कैपिटल में 26% से ज्यादा अमाउंट डीवीआर शेयर्स का नहीं हो सकता है. कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 साल में डिविडेंड देने लायक प्रॉफिट होना चाहिए. देन there is no default in filing financial statements and annual returns for 3 financial years
immediately preceding the financial year in which such shares are issued. जो भी साल में ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, इस साल के पिछले 3 साल में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स के फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं करना है. लेट्स से 2021 चालू है, सो 2020-2021 ईयर चालू है. सो मुझे अगर अप्रैल 2020 में ये शेयर्स इशू करने हैं, डीवीआर से शेयर्स इशू करने हैं, तो मुझे इसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का डिफॉल्ट नहीं करना है. ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा हुआ? 2019-2020, 2018-2019, 2017-2018. अब फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स मतलब फॉर्म AOC 4 में कंपनी अपने एनुअल जनरल मीटिंग के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, देयर बैलेंस शीट, ये चीजें फाइल करता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर्म MGT 7 में फाइल करता है. ये फाइलिंग में डिफॉल्ट रहेगा तो आप DVR से शेयर्स इशू नहीं कर सकते. आप किसी भी होल्डर को, किसी भी सब्सक्राइबर को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से अलग कुछ राइट्स नहीं दे सकते हैं. नेक्स्ट, देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. मतलब अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड इतना देना है या आप डिक्लेयर कर चुके हैं लेकिन पे नहीं किया है, ऐसा डिफॉल्ट. रीपेमेंट ऑफ मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, कंपनी ने अगर डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं, लेट्स से 2 इयर्स के लिए एक्सेप्ट किया है, मैच्योर हो गए वो डिपॉजिट्स, रीपे करने हैं वो डिपॉजिट्स लेकिन कंपनी वो रीपे नहीं कर रही है. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और डिवेंचर्स. सो बेसिकली अगर कंपनी अपनी कोई भी लायबिलिटी जो है, ऑब्लिगेशन जो है, वो अगर फुलफिल नहीं कर रहा है एंड DVR से शेयर्स इश्यू कर रहा है, लेट्स से मैंने अगर किसी को कुछ लोन का पैसा देना बाकी है, वो पैसा मैं नहीं दे रही हूँ और मैं किसी और को कुछ हायर बेनिफिट प्रॉमिस कर रही हूँ, तो ये तो गलत होगा. इसके लिए कंपनीज एक्ट स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन डालता है कि अगर एज अ कंपनी मेरे से कोई ऑब्लिगेशन बाकी है, मेरे से किसी का कोई डेट रीपे करना बाकी है, तो जब तक वो पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक मैं किसी और पर्सन को किसी एडिशनल बेनिफिट का प्रॉमिस नहीं दे सकती हूँ. There is no default in repayment of term loan from a public financial institution or state level financial institution or scheduled bank, interest payable thereon, statutory dues. मतलब अगर किसी भी बैंक से टर्म लोन लिया हुआ है, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टर्म लोन लिया हुआ है और वो टर्म लोन रीपे नहीं कर रही है कंपनी, या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट पेबल है पर इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज. स्टैट्यूटरी ड्यू मतलब कुछ चीज करनी बाकी है, कुछ चीज देना बाकी है, समथिंग दैट इज ड्यू फॉर कंप्लीशन. एंड स्टैट्यूटरी मतलब जो कायदे ने कहा है, जो कायदे से बताया हुआ है. इन सच अ केस टैक्स, वेजेस, बोनस, ये सारी चीजें कंपनी की स्टैट्यूटरी ड्यूज में कहलाई जाएगी. एंड ये चीजें अगर ये पेमेंट्स कंपनी नहीं कर रहा है, तो जब तक ये पेमेंट्स क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक कंपनी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू नहीं कर सकती है. इस सब के पीछे का लॉजिक एक ही है, कंपनी ने अपने ऑब्लिगेशंस जो एग्जिस्टिंग है वो करना बाकी है एंड कंपनी इसके साथ किसी और को, किसी न्यू पर्सन को प्रॉमिस कर रही है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स. तो जो पहले के प्रोमिसेस है वो अगर कंपनी ऑनर नहीं कर रही है तो न्यू प्रोमिसेस इनकर करना कंपनी को अलाउड नहीं है. नेक्स्ट, the company has not been penalized by any court or tribunal during last 3 years. पेनलाइज्ड मतलब किसी प्रकार की सजा, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस, कोई प्रोसीडिंग चल के किसी प्रकार की सजा कंपनी को किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने नहीं सुनाई है. कितने टाइम में? पिछले 3 सालों में. मतलब अगर मुझे आज की तारीख पे इशू करना है और 4 या 5 साल पहले कोई पिनल एक्शन मेरी कंपनी के अगेंस्ट लिया है
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट द डिफॉल्ट्स, द पेनल्टीज ड्यूरिंग लास्ट 3 years. Next, the next compliance is existing share capital cannot be converted into capital with different rights. मतलब डीवीआर शेयर्स में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का कन्वर्जन नहीं किया जा सकता है। अगर किसी भी पर्सन को डीवीआर शेयर्स चाहिए तो जब कंपनी इशू कर रही है वहीं सब्सक्राइब करना जरूरी है। द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर शेयर कैपिटल, और डीवीआर शेयर कैपिटल भी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। The details about shares issued with differential rights shall be disclosed in board's report. Shall, again compulsory provision. कंपनी ने डीवीआर इशू किया है तो कंपनी को क्या राइट्स है, क्या डिफरेंट राइट्स कंपनी ग्रांट कर रही है, क्या कंपनी ने शेयर्स कौन से इशू किए हैं, इससे रिलेटेड डिस्क्लोजर कंपनी को अपने बोर्ड्स रिपोर्ट में देना जरूरी है। Equity shares with differential rights shall enjoy all other rights such as bonus shares, rights shares, etc., which the equity shareholders are entitled to along with differential rights already issued. बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ये क्या होता है हम आने वाले कंसेप्ट्स में समझेंगे, लेकिन जैसे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एक बार मेंबर्स बनने के बाद कंपनी से ये बेनिफिट्स एलिजिबल हो जाते हैं, वैसे ही अगर कोई पर्सन इक्विटी डिफरेंशियल राइट्स से अगर इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है तो डिफरेंशियल राइट्स के होल्डर को भी ये सारे राइट्स एलिजिबल होते हैं, ये सारे राइट्स एंटाइटल्ड होते हैं। The register of members under section 88 shall contain the details of डिफरेंशियल राइट्स, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है कंपनी को सेक्शन 88 के तहत रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना पड़ता है। नेम इटसेल्फ सेज दैट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मतलब एक रजिस्टर मेंटेन किया है जिसके अंदर कंपनी के सारे मेंबर्स के डिटेल्स है। जब कंपनी डीवीआर इशू करेगा तो ये जो सब्सक्राइबर्स हैं इनके नाम भी इस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आने चाहिए। तो यहाँ हमारा शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का कंसेप्ट खत्म होता है। जैसा कि मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू गो बाय इन अ फेज्ड मैनर, सिंस वी हैव स्टार्टेड with one concept of how a company issues share capital, we will complete first all the types or all the different kinds by which company issues share capital. So after section number 43, the next section is section number 52, that is issue of securities at a premium. Companies Act allows companies to issue securities in 3 different values. कौन से 3 different values होते हैं? वो होता है at par, at premium, at discount. par मतलब something that is equal, जो कि face value के equal amount होता है, that is value at par. Then there is premium, जब कोई भी कंपनी सिक्योरिटीज फेस वैल्यू से हायर अमाउंट में इशू कर रहा है तो उससे सिक्योरिटीज एट प्रीमियम कहा जाता है। एंड डिस्काउंट जब फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से कम में इशू करता है तब उसे सिक्योरिटीज इशूइंग सिक्योरिटीज एट अ डिस्काउंट कहा जाता है। इन सेक्शन 52 वी आर कंसर्न विद इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट प्रीमियम। It means selling of securities at a value above par or above nominal value. The Companies Act does impose conditions regulating the utilization of the amount of premium collected on securities. देखो ध्यान से समझिए ये क्या है। अगर मेरी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपीज के हिसाब से एंड आई एम इशूइंग सिक्योरिटीज एट प्रीमियम, तो 10 रुपीज मेरा फेस वैल्यू है एंड लेट्स से 5 रुपीज मेरा प्रीमियम अमाउंट है। सेक्शन 52 किस चीज के लिए कंडीशंस डालने वाला है या किस चीज के कंडीशंस इंपोज करने वाला है, दैट इज 5 रुपीज हर शेयर के पीछे मुझे उन 5 रुपए का क्या करना है। अब समझिए इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसी होती है। 10 rupees is my nominal value and 5 rupees is my premium amount. So let's say 15 rupees के मेरी कंपनी ले रही है, सेल कर रही है 100 shares. That comes around 1500 shares.
In these 1500, 1000 is my nominal value of share capital and 500 is my premium amount. आई होप ये समझ रहा है. अगेन पहले से स्टार्ट करते हैं. 10 रुपया फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम, शेयर्स बेच रहे हैं 15 रुपए के हिसाब से. 100 शेयर्स हुए, 1500 रुपए आए. इन 1500 में से 10 रुपए तो फेस वैल्यू के थे, विच मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 रुपए फेस वैल्यू के आए एंड 5 रुपीज वेर प्रीमियम अमाउंट. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा. हमारे लायबिलिटीज में सबसे पहले हम जो पेड अप कैपिटल का अकाउंट लिखते हैं वहां सिर्फ 1000 रुपीज ही हम क्रेडिट करेंगे. वहां हमें सिर्फ 1000 की ही एंट्री करनी है, 1500 की एंट्री नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? क्योंकि 1500 is not our capital, it is the premium received on those shares. In reserves and surplus, we are going to create another account which is called securities premium account. ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में अब 1500 में से सिर्फ 500 रुपए ही क्रेडिट किए जाएंगे. रीजन, सिर्फ 500 रुपए ही हमारा प्रीमियम है. 1500 ना तो प्रीमियम है, 1500 ना तो कैपिटल है. 1000 चला गया कैपिटल अकाउंट में, 500 आएगा हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. लेट अस When a company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of premium received on those shares shall be transferred to a securities premium account. ये जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है ऐसे टाइम पे जितना प्रीमियम आया है वो कैपिटल में नहीं जाएगा, जितना प्रीमियम आया हुआ है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा. अगेन कंपनीज एक्ट हैज इम्पोज्ड कंडीशंस. देखिए बोल्ड किया हुआ है. कंपनीज एक्ट किस चीज के लिए कंडीशंस करती है? यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन मतलब वापर कैसे करना है. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 500 रुपए दिख रहा है ना, अब किसी भी चीज के लिए खर्च कर दो, ऐसा तो अलाउड नहीं है. तो कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 52 सब सेक्शन 3 के तहत क्लियरली बताया हुआ है कि कौन से चीजों के लिए ही आप ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किसी भी चीज के लिए डेबिट होगा अलाउड नहीं है. किस किस चीज के लिए डेबिट होगा? इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स. अगेन बोनस शेयर्स का कंसेप्ट सेक्शन 63 में डिटेल में आएगा, पर आपके समझने के लिए शॉर्ट में बता दूं, बोनस इज इंसेंटिव जो आपको एडिशनली एक्स्ट्रा मिल रहा है. मेंबर्स जब कंपनी में कैपिटल देते हैं उसके लिए कंपनी के पास जब रिजर्व्स होता है तब कंपनी अपनी तरफ से उनके शेयर्स देती है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स. फुल्ली पेड बोनस शेयर्स जब कंपनी मेंबर्स को दे रही है तो नाउ मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फुल्ली पेड बोनस शेयर्स देना चाहती है. बोनस शेयर्स दे रही है मतलब मेंबर से तो पैसा आएगा नहीं, पर शेयर्स दे रही है तो कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट करना पड़ेगा. शेयर्स दे रही है और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है तो डेबिट कहाँ करें? डेबिट करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाएगा बोनस शेयर्स बोल के कैपिटल अकाउंट में. कैपिटल अकाउंट बढ़ गया तो मेंबर्स की शेयर होल्डिंग भी बढ़नी चाहिए. मेंबर्स को तो फ्री में और पैसे मिल गए या और शेयर्स मिल गए, सॉरी मेंबर्स को फ्री में और शेयर्स मिल गए. ये जो शेयर्स एडिशनल एक्स्ट्रा बेनिफिट के मिले हैं दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स. सेकेंड, writing of the balance of preliminary expenses of the company. Preliminary expenses are those expenses which company incurs before or during the incorporation of the company and write off करना है settle करना. वो जो preliminary expenses है वो settle करने के लिए भी securities premium account में से पैसा use किया जा सकता है. Writing of commission paid, discount allowed or expenses incurred on issue of shares or debentures of the company. कंपनी शेयर्स इशू करेगा तो खर्चा तो करना पड़ेगा उसको, कंपनी को एक्सपेंसेस इनकर होंगे. ये एक्सपेंसेस सेटल करने के लिए भी कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से पैसा यूज कर सकती है. फॉर प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी किसी भी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहा है मतलब बाईबैक कर रहा है, एक प्रकार का बाईबैक कर रहा है. मतलब
कंपनी अपने पैसे उन होल्डर्स को वापस देके उनसे प्रेफरेंस शेयर्स वापस लेगा। जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स रिडीम कर रहा है, और रिडीम कैसे कर रहा है, प्रीमियम पे रिडीम कर रहा है, मतलब एडिशनल अमाउंट दे के रिडेम्पशन कर रहा है। ये एडिशनल अमाउंट कहाँ से दिया जा सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से भी दिया जा सकता है। फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68, सेक्शन 68 के तहत बाईबैक करना है। बाईबैक का भी एंटायर कंसेप्ट कंपनी सेक्शन नंबर 68 में हमें पढ़ना है। अगेन लेट अस सी व्हाट आर इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम। अगर एक कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे सिक्योरिटीज इशू कर रही है, तो वो सिक्योरिटीज वो कंपनी वो एडिशनल अमाउंट कैपिटल बोल के क्रेडिट नहीं करेगी। वो कहाँ डाला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाला जाएगा। उसके लिए अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाया जाएगा, और वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किसी भी चीज़ के लिए यूज हो ऐसा अलाउड नहीं है। वो सिर्फ सेक्शन 52 सबसेक्शन 3 में जो एक्सपेंसेस अलाउ किए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में का पैसा यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रोहिबिशन टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। प्रीमियम पे इशू करना अलाउड है, पर डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। अ कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। Any share issued by a company at a discounted price shall be void. Void, that is of no meaning, of no effect. कंपनी किसी भी तरह से शेयर्स फेस वैल्यू से कम के वैल्यू पे इशू नहीं कर सकता है। There's an exception to this. A company may issue shares at discount to its creditors when its debt is converted into shares in pursuance of any statutory resolution plan or debt restructuring scheme in accordance with any guidelines or directions or regulations specified by RBI under Reserve Bank of India Act or Banking Regulations Act. मतलब अगर कभी भी कंपनी अपने क्रेडिटर्स का डेट शेयर्स में कन्वर्ट कर रहा है, that can be done at a discounted price provided it is allowed by the Reserve Bank of India or the Banking Regulations Act. In case company issues shares at discount other than the exception as provided above, अगर कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर ही रही है, what is the punishment? Company and every officer in default shall be liable to the amount raised through the issue of shares at a discount or ₹5 lakh whichever is less. जितना भी पैसा कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करके रेस किया है, वो पैसा या 5 लाख जो भी कम अमाउंट रहेगा, उतना कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट का लायबिलिटी रहेगा। कंपनी shall also be liable to refund all monies received with interest at 12% per annum. कंपनी ने जिस पर्सन से शेयर्स रेज किए हैं, उस पर्सन को कंपनी ने रिफंड भी देना पड़ेगा, और ये रिफंड सिर्फ जितना अमाउंट लिया है उतना ही नहीं, 12% का इंटरेस्ट जोड़ के रिफंड देना पड़ेगा। अभी तक हमने कौन से कंसेप्ट्स देखे, 3 प्रकार से शेयर्स के इश्यूज हमने देखे हैं। कौन से 3 प्रकार है, differential rights, shares with differential rights, section number 43. Section number 52 is issue of securities at premium, and section number 53, that is prohibition to issue shares at discount. Let us start with section number 54, that is issue of sweat equity share.